Hello everyone, welcome to my channel 24/7 English. This video is specially for class 12 students, and in this video we are going to cover up the 6th poetry from Flamingo book Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrian Rich. Now this story is based on, as the name itself indicates, Aunt Jennifer, means there is an aunt or you can say auntie, and her name is Jennifer. Now let's discuss about the poet. Now Adrian Rich is the poet and she was born in Baltimore, USA. अब USA में वो हुई है पैदा, तो नेचुरली उसके जो उनका जो वर्क है उसमें थोड़ा बहुत अमेरिकन, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अमेरिकन कल्चर जो है वो हमें दिखेगा, बिकॉज हम पहले भी ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारे पोइट होते हैं, ऑथर होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो जो भी काम करते हैं तो उनमें जिस सराउंडिंग्स में वो रहे हैं, पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, वो सारा उनका कल्चर जो है उस सराउंडिंग्स का वो उनके वर्क में वी कैन इजीली नोटिस. सो शी वॉज बॉर्न इन यूएसए एंड शी इज वाइडली नोन एज फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट. मीन्स कि एज अ पोएट एज वेल एज थ्योरिस्ट. थ्योरिस्ट मीन्स द पर्सन हु राइट्स द थ्योरीज, एनी सॉर्ट ऑफ थ्योरीज. तो वो उसके लिए बहुत फेमस है, जानी जाती हैं. इसके लिए कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट, मतलब वीमेंस की जो भी मूवमेंट होंगी उसमें उन्होंने बहुत पार्टिसिपेशन किया है थ्रू हर पोइट्री एंड थ्योरीज. She has published 19 volumes of poetry, 3 collections of verses and other writings. A strong resistance of racism and militarism echoes her work. Now, what he says, strong militarism and racism. अब racism क्या होता है? You might be aware about the black and white racism in USA. जो blacks और whites का वहाँ पे racism बहुत common था और अब तो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, but still I think it still persists there. So वो and militarism. Military means we can easily say कि military rule जिसको हम कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ उसके रिगार्डिंग वो बहुत उनकी पोइट्री जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. उनकी पोइट्री से वो इजीली हमें पता चलता है. Then further he says that the poet Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life a woman experiences. Now the main thing that this poem is based on the constraints. Constraints means restrictions. जो problems हैं faced by a married women in her married life. वो क्या क्या constraints होती हैं, क्या restrictions होती हैं, क्या उनको face करना पड़ता है अपनी life में, उससे related ये सारी poetry है. Let's discuss the theme of this poetry. This poem deals with the pathetic condition of married women all over the world. Pathetic means a very brutality you can say, or we can easily relate it with the domestic violence. जो domestic violence ladies को female को face करना पड़ता है अपनी family में, and she is not talking about a particular country, she is talking about the entire world. कि ऐसा नहीं किसी एक ही country में ऐसा होता है, सभी कंट्रीज में ऐसा होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा. Aunt Jennifer is a symbol of all married women who are suffering at the oppressive hands of patriarchal society. Aunt Jennifer is a symbol. वो सबको symbolize कर रही हैं all over world की ladies को. She alone is symbolizing all the ladies of the entire world, जो married ladies हैं and who are suffering. और कौन सी married ladies? Who are suffering at the oppressive. Oppressive means brutal you can say, or you can say very pathetic also, and the ladies who are suffering a lot because of the cruelty of their husbands, their harsh conditions or authoritativeness of their husband, वो भी हम कह सकते हैं hands of patriarchal. Patriarchal means the society of male dominated society, you can say the society controlled by or authoritatively done by मेल्स, जिसको सिर्फ मेल्स कंट्रोल करते हैं. मतलब कि मेल्स ही डिसाइड करते हैं. जैसे बहुत आपने अपने आसपास या नेबरहुड में या मूवीज में भी देखा होगा कि बहुत फैमिलीज में ऐसा होता है. मैनी वीमेन फेस लॉट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस हम किसको बोलते हैं? जैसे लड़ाई झगड़ा घर में होना, मार पिटाई होना, वो सब वो फेस करती हैं. या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे दे कांट लिव फ्रीली. फ्रीली इन द सेंस कि वो उनको वो फ्रीडम नहीं है कि कहीं जाना है, कुछ करना है, तो दे हैव टू आस्क फ्रॉम देयर हस्बैंड. इफ दे विल गिव द परमिशन देन ओनली दे कैन परस्यू. मतलब अगर वो कुछ परमिशन उनको मिलेगी वहां से, मतलब अपने हस्बैंड से, जैसे आप कह सकते हैं कि वो पहले अपना एप्लीकेशन देंगी, फिर उसके बाद वो उसको फाइनलाइज करेंगे और उसको अप्रूव करेंगे.
दिस वे ऑल्सो वी कैन से, जैसे ऑफिस में होता है कि आप किसी काम को करने के लिए पहले अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है, फिर उसके बाद वो काम होता है। तो इस तरह से उनको वो फॉलो करना पड़ता है, मतलब अपने हस्बैंड से पहले डिस्कस करते हैं, फिर बताएंगे उनको सब कुछ, पूरी डिटेल्स, फिर वो पूछेंगे क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, देन दे विल डिसाइड whether she has to do or not. और अगर वो कहेंगे yes, then she can do. If they will say no, then she can't, simply. So that is patriarchal society. और वो सब फैमिली में ऐसा जो इस तरह की जो चीजें हैं वो मैरिड वुमेन जो फेस करती हैं, उन सबसे रिलेटेड हमारी ये पोइट्री है. So without further ado, let's start the poetry. Now the poet says, what does the title of a poem suggest to you? Are you reminded of other poems are on tigers? अब ये हमने डिस्कस किया कि हाँ ये किस से रिलेटेड है. टाइटल हमारा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो आंट जेनिफर हैं, उनके टाइगर्स हैं, तो क्या मतलब ये आंट जेनिफर्स के टाइगर्स हैं, क्या वो उनके पेट हैं, उन्होंने अपने घर में रखे हुए हैं, या उनके फेवरेट हैं, या उनकी आप ये कह सकते हैं कोई ऐसी पिक्चर है जिसमें उनके वो टाइगर्स उनको पसंद है, मतलब क्या है, व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइगर्स दीज आर. सो लेट्स सी. Aunt Jennifer's tigers prance across the screen, bright topaz denizens of a world of green. Now the poet says Aunt Jennifer's tigers prance across a screen. मतलब Aunt Jennifer के जो tigers हैं, they prance mean moving freely or jumping without any hesitation, without any problem, with or moving confidently. तो वो ऐसे prance करते हैं कहाँ पर, across the screen, on the screen. Screen कैसे कि actually she is doing the embroidery. She does embroidery on the screen, on the panel, on the cloth. तो उस पे जो वो स्क्रीन बना है, जैसे as you can see on the picture on the screen also, कि वो स्क्रीन है पे जो पिक्चर है, ऐसी ये स्क्रीन है और इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हो रही है, तो दिस इज द स्क्रीन. और इस स्क्रीन के ऊपर वो कहते हैं कि उन्होंने इस तरह से मूवमेंट्स टाइगर्स की दिखाई हैं कि ऐसा लगता है लाइक दे आर मूविंग ऑन द स्क्रीन. मीन्स ऐसा नहीं कि वो आराम से खड़े हैं, स्टिल पोजिशन में, नहीं, दे आर मूविंग. जैसे आप ये पोइट्री में यू कैन सी इन द एनसीईआरटी बुक ऑल्सो दिस वे. सो दे आर मूविंग फ्रीली. ब्राइट टू पास डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स यूज किए हुए हैं. अब ब्राइट टोपाज, टोपाज इज अ वेरी प्रीशियस स्टोन. हियर इट इज ऑन द स्क्रीन. सो ये स्टोन है, इस स्टोन जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत शाइनिंग स्टोन है, बहुत ब्राइट स्टोन है, तो उससे सिंबल को किसका दिया है उन्होंने, वो ब्राइट टोपाज यूज करती हैं टाइगर्स के लिए. तो टाइगर्स की जगह वो लगाती हैं, यानी वो दिखाती हैं दैट दिस टाइगर इज सो ब्राइट एंड ही इज सो यू कैन से फैसिनेटिंग, कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरह का वो टाइगर है. एंड डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. डेनिजन्स मीन्स द नेटिव्स और द सिटीजन्स ऑफ अ प्लेस, और सिंपली इट हैज रिटन अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, मतलब कोई भी ऐसा. अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स ग्रीनरी, वर्ड मीन्स द फॉरेस्ट. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का क्या मतलब, इसका यहाँ पे फॉरेस्ट से डिनोट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट में वो टोपाज डेनिजन्स, मतलब टोपाज से उन टाइगर्स को दिखाया है जो उसके वहां पे डेनिजन्स यानी सिटीजन्स दिखाए हुए हैं कि वो फॉरेस्ट के सिटीजन्स हैं, और सिटीजन्स हैं तो वो फ्रीली मूव कर रहे हैं बिकॉज दे हैव द राइट ऑफ फ्रीडम, कि वो आराम से कहीं भी मूव कर सकते हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक chivalric certainty. Now they don't fear the man beneath the tree. Beneath the tree means under the tree. ट्री के नीचे जो आदमी खड़ा है, ट्री के पास खड़ा है, उससे उनको कोई डर नहीं है. they don't fear. क्यों? बिकॉज वो तो टाइगर्स है. अब टाइगर्स का पिक्चर जैसे ही हमारे माइंड में आता है, अब आप सपोज करके देखिए कि इफ अ टाइगर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने टाइगर आ जाए तो आपकी क्या हालत होगी. तो वही चीज हम, वो ऐसा क्यों होगा, बिकॉज टाइगर्स आर द सिंबल्स ऑफ ब्रेवरी, बोल्डनेस, fearlessness, or we can say freedom और strength, इन सबके सिंबल्स हैं वो. तो टाइगर्स किसी से डरते नहीं हैं, हम लोग डरते हैं उनसे. तो वही चीज वो कहते हैं यहाँ पे, हमारी पोएट कहती है that they don't fear the man beneath the tree. उनको किसी का डर नहीं है, कोई खड़ा भी है. अब who is this man? This man is basically the hunter. जो हंटर है वो हंटिंग करने आया है वहां पे, वो खड़ा है, उनको मारने के लिए खड़ा है, उनकी हंटिंग के लिए खड़ा है, बट स्टिल उनको उसका कोई डर नहीं है. They pace in sleek chivalric certainty. Pace means speedily, speed से. Chivalric and sleek you can say very gentle or mild, बहुत smoothly वो वहां से जा रहे हैं. And chivalric certainty is the confidence, and chivalric is courage, brave,
जो है, उनकी ब्रेवरी है, उनका कॉन्फिडेंस है, वो उसके साथ वहां पे मूव कर रहे हैं स्पीडली, पूरे स्पीड के साथ। मतलब ऐसा नहीं कि वो डर के भाग रहे हैं, नहीं, वो डर के नहीं भाग रहे हैं, वो एक्चुअली जेंटली स्मूथली बहुत आराम से इजीली वहां पे रन कर रहे हैं। पेस इज देयर स्पीड, अपनी स्पीड में वो चल रहे हैं वहां पे। Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. Now what is ivory? Ivory is this metal. Here is on the screen. ये आइवरी है और इसकी जो निटिंग नीडल्स होती है वो इससे बनाई जाती हैं। आपने बहुत लेडीज को देखा होगा निटिंग करते हुए, स्वेटर्स बनाती हैं, तो दीज आर द नीडल्स। तो ये नीडल्स उसके लिए यूज होती है। एम्ब्रॉयडरी के लिए भी इसी मेटल की नीडल्स बनती हैं। तो ये कहते हैं कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल, वुल से जो वो पैनल के ऊपर टाइगर्स बना रही हैं, हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग। फ्लटरिंग मीन्स दे आर फुल ऑफ फियर, वेरी टेरिफाइड, डरी हुई हैं। दैट्स व्हाई दे आर शिवरिंग, कांप रही हैं। मतलब उनकी मूवमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं है, उनकी फिंगर्स जो है वो कांप रही हैं, बना भी रही हैं और कांप भी रही हैं। एंड उनके लिए इट्स शी फाइंड आइवरी निडल हार्ड टू पुल, कि एक निडल को, बहुत हल्की सी निडल है, बहुत लाइट वेट है, बट स्टिल शी इज नॉट इवन केपेबल टू पुल दिस निडल और टू होल्ड दिस निडल। इस निडल को वो प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर पा रही है, वो उसको ढंग से चला भी नहीं पा रही है, वो डर डर के काम कर रही है। तो व्हाट पोएट वांट्स टू से कि यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं वो डर कर रह रही है, हर लाइफ इज फुल ऑफ फियर, वो डरी हुई रहती हैं हमेशा। कोई भी, इसका मतलब ये कि वो कोई भी काम करती हैं वो फ्रीली नहीं करती हैं, वो कॉन्फिडेंस के साथ नहीं करती हैं, वो डरती रहती हैं। The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अब वो डर किस चीज का बता रहा है, उसका सिंबल बताया है उन्हें अंकल का। अंकल हुज अंकल? आंट जेनिफर्स हस्बैंड। अब जैसे यहाँ दिखाया है कि मैरिड वेमेन के जो मैरिड लाइफ के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हाउ व्हाट दे सफर एंड हाउ दे आर सफरिंग इन देयर लाइफ, तो वो सब चीजें यहाँ दिखाई हैं। तो वहां पे वो बताता है कि जो मैसिव वेट, मैसिव मीन्स वेरी हैवी, वेरी वेरी हैवी, एंड हैवी क्या है ये? अंकल्स वेडिंग बैंड। This is the wedding band, or you can say the ring also. This is the wedding band. अब ये उनकी मैरिज का बैंड। जैसे आप नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या होता है, what we do in engagements, we share the rings, we transfer the rings, the bride and the bridegrooms. So वो rings जो है उसको वो कहते हैं wedding band। अब वो कहते हैं वो बहुत मैसिव वेट है। अब मैसिव वेट कैसे हो गया? रिंग्स तो बहुत लाइट होती हैं, बट वाई शी सेइंग मैसिव वेट? क्योंकि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनकी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इतनी ज्यादा हैं दैट शी फील हरसेल्फ बाउंड इन इट। ऐसा लगता है जैसे वो बंधी हुई है उसके अंदर। जैसे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर कि हमने फिंगर में रिंग है, तो ऐसा फील हो रहा है जैसे इसने रिंग ने पूरी फिंगर को क्लोज कर दिया है। सेम वे उनकी जो लाइफ है, मैरिड लाइफ, वो इस रिंग की वजह से क्लोज हो चुकी है, मतलब उनकी लाइफ को उसने बंद कर दिया है। सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, और इतनी हेवीली मतलब बहुत हेवी हार्ट से, बहुत परेशान होके उनके हाथों में ये है। हाथों में मतलब शी इज होल्डिंग इट, वो अपने हाथों में इसको पहन के बैठी हैं और बहुत लाइफ में उनके सफरिंग्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। मीन्स उनके जो हस्बैंड हैं, जो अंकल हैं, शी डजंट, वी कैन से शी डजंट लव हिम, सॉरी, we can say that he doesn't love her, or we can say that he is a very brutal kind of person, very harsh person. और मैरिड लाइफ तो है, लेकिन कोई उसमें लव या अफेक्शन वाली कोई ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, अपना चल रहा है, मतलब वो वाली सिचुएशन है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeals she was mastered by. What he says, when aunt is dead, her terrified hands will lie. जब उनकी डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तब भी उनके हाथ जो है वो टेरिफाइड होंगे। टेरिफाइड क्यों? डरे हुए, बिकॉज शी इज फुल ऑफ फियर। अब वो टाइगर्स क्यों बनाती हैं? वो तो ऑपोजिट हो गया, बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट में है, मतलब उनके कैरेक्टर से कंट्रास्ट में टाइगर है। तो वो इसीलिए वो बता रहे हैं, विल डिस्कस इट लेटर, राइट नाउ, दैट हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई, उनके हैंड्स जो हैं वो बिल्कुल उनके हाथ एकदम साइड में होंगे, जैसे नॉर्मली कॉप्स के साथ होता है, जो डेड बॉडीज होते हैं हाथ उनके बिल्कुल साइड में होते हैं, तो ऐसे होंगे। बट स्टिल ringed with ordeals she was mastered by, मतलब mastered by means the violence faced by her. Violence, which type of violence? Domestic violence. And who does such domestic violence? Her husband. जो अंकल हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ रखते हैं, मार पिटाई करते हैं या whatever is। तो वो जो उन्होंने फेस किया हुआ है सारा, उसकी ऑर्डील्स मीन्स
उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा उनकी कंस्ट्रेंट्स हैं, वो सब के साथ, वो रिंग के साथ उनके साथ ही रहेंगी, स्टिल रिंग्ड विद, मीन्स कि उनकी डेथ भी हो जाएगी, इवन आफ्टर हर डेथ ऑल्सो शी विल बी इन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर कमिटमेंट्स डन फॉर द मैरिड लाइफ, हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैरिड लाइफ, वो उन सबसे फिर भी बंधी रहेंगी उसे. Still ringed with ordeals, she was mastered by the violence faced by her, or domestic violence done by her husband, you can say. And ordeals means very unpleasant and prolonged experience, मतलब कि बहुत सालों से इतने अनप्लीजेंट जो एक्सपीरियंसेस फेस कर रही हैं. अनप्लीजेंट क्या? ऑपोजिट ऑफ प्लीजेंट. प्लीजेंट क्या? हैप्पी मोमेंट्स. एंड अनप्लीजेंट अनहैप्पी मोमेंट्स. जो अनहैप्पी मोमेंट्स हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, जो प्रोलॉन्ग्ड मतलब सालों से वो फेस करती आ रही हैं और उसको चेंज नहीं कर पा रही हैं, दैट वाज ordeals. Those are ordeals here. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. Now what she says, but उनकी डेथ के बाद भी ये टाइगर्स जो हैं ये पैनल पे ऐसे ही मूव करते रहेंगे, विदाउट एनी फियर, अनअफ्रेड एंड फुल ऑफ प्राउड. पूरे प्राउड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने उसके ऊपर, पैनल के ऊपर वो इसी तरह से मूव करते रहेंगे, चाहे बेशक आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाए, वो डेड भी हो जाएंगी तो भी ये टाइगर्स जो है वो अपनी मूवमेंट बंद नहीं करेंगे. मतलब क्या है इसका कि आंट जेनिफर जो अपनी लाइफ में करना चाहती हैं, एक्चुअली शी वांट्स टू बिकम अ ब्रेव लेडी, अ बोल्ड लेडी, आउट ऑफ द फियर, मीन्स विदाउट एनी फियर. शी वांट्स टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन. बट प्रॉब्लम क्या है कि उनके जो हस्बैंड है वो ही इज मास्टरिंग हर. मास्टरिंग मीन्स उनको, उनके साथ जो वायलेंस रखते हैं या जो भी उनकी ऑर्डील्स हैं उससे रिलेटेड, तो शी कांट डू ऑल सच थिंग्स. मतलब उनको वो चाहती हैं बट कर नहीं पाती हैं. जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि वो चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन वो कर नहीं पाते, बिकॉज उनका उनका जो नेचर होता है टोटली कंट्रास्ट होता है. वो सोचते बहुत कुछ है करना, लेकिन वो कर नहीं पाते. वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते कि वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ों को अंदर ही रखते हैं. वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं और उनको वो लोग ज़्यादा पसंद आते हैं जो उनके ऑपोजिट होते हैं, जैसा वो बनना चाहते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं. तो वही चीज़ यहाँ पर है कि वो टाइगर्स बनाती है. क्यों? क्योंकि वो टाइगर्स जैसा बनना चाहती हैं. वो फियरलेसली रहना चाहती हैं, वो ब्रेव बनना चाहती हैं. शी वांट्स टू बिकम बोल्ड, शी वांट्स टू लिव फ्रीली विद फुल कॉन्फिडेंस, बट वो ऐसा नहीं कर पाती हैं. तो वो अपनी सारी फीलिंग्स को पैनल पे लेकर आती हैं. पैनल पे कैसे? थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी. अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू वो पैनल पे लाती हैं. और पैनल पे क्या बनाती हैं फिर वो? शी मेक ऑल द टाइगर्स. सिर्फ टाइगर्स बनाती हैं और कुछ नहीं बनाती है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, आपने एम एफ हुसैन का नाम जरूर सुना होगा, द फेमस पेंटर एम एफ हुसैन. उनकी सारी पेंटिंग्स में जो है वो हॉर्सेस होते थे. वो हॉर्सेस के ऊपर बहुत पेंटिंग बनाते थे. तो मे बी ही वॉज फैसिनेटेड विद द हॉर्सेस. तो उनकी पेंटिंग्स में हॉर्सेस जैसे होते थे, ऐसे ही ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आंट जेनिफर की जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज हैं उसमें सब में टाइगर्स हैं. उन्होंने सब में टाइगर्स बनाए हुए हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं. फ्रीली मूव कर रहे हैं मतलब वो फ्रीली नहीं मूव कर पाती, वो नहीं ऐसा कर पाती, तो वो अपनी लाइफ में जो नहीं कर पाती वो सब अपने पैनल पे वो दिखाती हैं. राइट. सो दिस इज द एंड ऑफ आवर पोएट्री. वी हैव डन इट वेरी वेल. बहुत छोटी सी, वेरी शॉर्ट और बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल पोएट्री है. कुछ इसमें प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत ईजी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने बहुत अपने आसपास, अपने सराउंडिंग या मूवीज में या आपके सीरियल्स में, आप यू माइट हैव सीन इट. सोशल मीडिया में भी बहुत ऐसे, मतलब जैसे शॉर्ट क्लिपिंग्स होंगी या कुछ इस तरह से आपने देखा होगा, तो हम ये चीज़ें देखते हैं. और ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर सोसाइटी में होती हैं. दिस इज ऑल ओवर इन द वर्ल्ड. हर तरह की सोसाइटी, हर तरह की कंट्री में ऐसा होता है. बट अब ये जब पोइट्री लिखी गई थी उस टाइम ऐसा ये बहुत ज़्यादा था, बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन 1929. तो उस टाइम बहुत ज़्यादा था. अब काफ़ी हद तक, मतलब वी कांट से दैट इट हैज़ बीन स्टॉप्ड और इट्स नॉट गोइंग ऑन नाउ, बट काफ़ी हद तक अब हो चुका है. So let's discuss about the poetic devices of the poetry. So here are the poetic devices. First of all, we'll see the imagery. Imagery means the images shown in this poetry. Aunt Jennifer, she is fear stricken. डर से डरी हुई हैं बहुत ज़्यादा. She is stricken by the fear. Topaz, ivory, gold of wedding band. These are the materials or the stones. So उनको भी वहाँ यूज किया है अलग अलग फॉर्म में. These are also images. Topaz किसका इमेज है? It's the image of
tigers. Ivory and gold of wedding band, ये किसका image है? Married life का. Symbols. अब symbols क्या हैं? Wedding band. Wedding band is the symbol of unhappy marriage. So how the poet shows the unhappy marriage? Through wedding band. She is saying that constraints of married life. तो constraints of married life को कैसे दिखाया उन्होंने? Uncle's wedding band उस तरह से दिखाया है. Then tigers. Tigers are the symbols of free, brave spirit. Spirits or soul. ये tigers को दिखाया है. These are the symbols of freedom, bravery. Embroidery. Embroidery क्या है? Embroidery is also a sort of symbol here. It's a symbol of creative expression. Creative expression means whatever she wants to express, whatever she wants to say, she is expressing herself through the embroidery. Embroidery के through अपने आप को express कर रही हैं सबके सामने. The next is alliteration. Alliteration we have done earlier also. It's very easy. The repetition of an alphabet. Here, fingers fluttering. F F. Repetition. Prancing proud. P P. Repetition. Alliteration. Simple. Metaphor. Metaphor जैसे हमने पहले भी पढ़ा, comparison show करता है. The poet compares the yellow stripes of the tigers to a precious stone topaz. एक living और non-living के बीच में comparison दिखा रहा है. How? जो yellow stripes tigers के ऊपर हैं. स्क्रीन पर देखिए, जैसे ये टाइगर है, आप इसके stripes देख रहे हैं. Stripes means जो lines हैं इसके body के ऊपर. These lines are shown by the precious stone and which is topaz. So, this is the end of this video. We have completed the poetry. We have done the poetic devices also. So I hope you understood the poetry very well and the poetic devices also. So if you understood and you like the video, then don't forget to click the like button, share the video among your friends and subscribe the channel if you have not subscribed yet.